सब आगे करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कल हमने क्या किया था कि हमने जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाई करा था इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या क्राइटेरिया थे, क्या क्या नेसेसिटीज थी, क्यों कार्बन को हम लोग इंक्लूड करते हैं एज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कल हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ओके, सो आज हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम क्लासिफाई करते हैं इसको तो वी क्लासिफाई देम इनटू नंबर 1 ओपन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन का मतलब क्या हुआ, दैट दीज कंपाउंड्स दे कंसिस्ट ऑफ long single chains or they consist of branched chains but they do not have any cycle। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें they form the carbon, it forms a ring। ओके, सो यहाँ पे जो ओपन या एसाइक्लिक होते हैं उसमें लॉन्ग और सिंगल चेन्स होती हैं या फिर उसमें ब्रांच चेन्स होते हैं। These compounds open chain they are known as what? They are known as aliphatic, ठीक है, they are known as aliphatic compounds। aliphatic हम इसको क्यों बुलाते हैं, because इसमें लॉन्ग चेन्स होते हैं। So these are majorly compounds which are originated from fats। Aliphatose means fats, ठीक है। So fats से ये originate होते हैं। These are open और acyclic, open chain और acyclic compounds, right? फिर उसके बाद let's take a few examples। हमने कल बड़े सारे examples करे थे, जैसे for example ethane, right? Then we have CH3, CH2, CH3, propane। ओके, फिर अगर हम ब्रांच चेन ले लें तो वी हैव CH3, CH, यहाँ पे एक हमने ब्रांच दे दी CH3, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू, दिस इज नोन एज मिथाइल प्रोपेन। ओके, कॉमन नेम है इसका मिथाइल प्रोपेन। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे। या फिर हमारे पास है CH3, C, CH3, CH3 and CH3। This is known as neopentane, ठीक है। So all these you can see either they are open chain or they are branched chain। They all come under the aliphatic compounds या open और acyclic compounds, right? Second जो हमारे पास होते हैं they are known as closed chain organic compounds। Closed chain और cyclic, they are known as closed chain or cyclic organic compounds। In this you can see कि word हम लोग cyclic यूज कर रहे हैं तो इसमें कार्बन जो है that is going to form cycles। ओके, ये वाले जो compounds हैं इनको हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बुलाते हैं। They are also known as carbocyclic compounds, ठीक है। They are further of 3 types। The first one they are known as alicyclic। They are known as alicyclic। In alicyclic compounds they have rings of 3 or more than 3 carbon atoms। They consist of rings of 3 or more than 3, ठीक है। They consist of rings of 3 or more than 3 carbon atoms। Examples which we can take over here is that of bond line notation में हम इस तरह से 3 carbon atoms को शो करते हैं ना साइकिल, कल हमने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद 4 carbon atoms in a ring और फिर उसके बाद 5 carbon atoms in a ring and 6 carbon atoms in a ring। So these they are known as alicyclic compounds।
यहाँ पे इट इज नॉट एसेंशियल कि यहाँ पे तो हमने सारे सिंगल बॉन्ड्स शो करें, कोई जरूरी नहीं है कि सबके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर हमको डबल बॉन्ड शो करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या अगर हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। सो इट मे कंटेन सिंगल और डबल बॉन्ड्स बोथ। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, दे आर नोन एज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। What is aromaticity? That we will do later in detail. अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो aromatic compounds हैं, they are further classified into two. They aroma. Aromatic जो है वो aroma से word develop किया गया है. Aroma means smell, ठीक है, और fragrance. Aroma smell तो आप wrong उसमें ले जा सकते हो ना, bad smell या good smell दो होती है। तो aromatic basically means a good smell, right? It is a fragrance. So aromatic compounds को हम further classify करते हैं into benzenoid aromatic compounds. Benzenoid aromatic compounds कौन से होते हैं? They are those compounds which have at least one benzene ring. Now we come to another term over here, which is benzene. Okay, so benzene क्या होती है? That is a homocyclic ring with 6 carbon atoms with alternate single and double bonds. ठीक है? Which can also be represented as this. So it should have, the benzenoid compound should have at least one benzene ring, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं with a homocyclic which has 6 carbon atoms, ठीक है, and which has alternate positions पे it has single and double bonds. Okay, तो उनके पास, बेंजीनॉइड के पास एक बेंजीन रिंग होना जरूरी है। बेंजीनॉइड के पास 2 बेंजीन रिंग्स भी हो सकती है, as we just said कि इसका जो नाम होगा that is going to be what? बेंजीन। अगर ये 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हो, right, fused benzene rings, then this is known as naphthalene. Naphthalene क्या है? It is the naphthalene balls जो कि यूज करते हैं हम, moth balls जिसको बुलाते हैं ना, moth repellent balls, जो आपने देखा होगा कि मदर्स वगैरह है वो वुलन्स को सेव करने के लिए या सिल्क को सेव करने के लिए व्हाइट कलर के बॉल्स डालते हैं, वो इसी से बने होते हैं। दिस इज अ सब्लाइमेबल सब्सटेंस और ये मॉथ्स को या कीड़ों को रिपेल करती है, राइट। सो सब्लाइमेबल का मतलब इट विल सॉलिड से डायरेक्टली गो टू द गैसियस स्टेट, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच लिक्विड स्टेट में जाती ही नहीं है और वो प्रोटेक्ट करती है क्लोथ्स को, राइट, दैट इज द नैप्थलीन। फिर अगर 3 फ्यूज्ड रिंग्स इकट्ठी हो, like this, if there are 3 fused rings together, then this is known as anthracene, right? Now benzenoid compounds में it is not essential कि rings fused भी हो, they can be individual rings also present. Individual rings can also be present, जैसे for example अगर हम 2 benzene rings को bond show कर दें इस तरह से, right, then this is known as biphenyl, राइट। और अगर 3 को हम लोग कर दें ऐसे ही, हम 3 एक और आगे बेंजीन रिंग इंक्लूड कर दें इसमें, like this, then this is known as terphenyl, right। तो ये तो सारे हो गए बेंजीनॉइड। Then we also have certain non-benzenoid aromatic compounds. Non-benzenoid aromatic compounds कौन से होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव एजुलिन, इसमें साइक्लिक रिंग एक प्रेजेंट है, now in this ring there are how many carbon atoms? 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 carbon atoms with 1 double bond here, 1 double bond here and the other double bond here, ठीक है।
और इसके साथ एक और रिंग जो है दैट इज अ पेंटासाइक्लिक रिंग व्हिच इज अटैच्ड लाइक दिस. ओके, पेंटासाइक्लिक रिंग. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है. This does not contain a benzene ring, but still it will show the property of aromatic compounds. Therefore, this also comes under aromatic compounds, azulene. Okay, so we have now done alicyclic, एक करा हमने, aromatic दूसरा करा. alicyclic में क्या होता है? There are closed chains, cyclic compounds which consist of more than 3 carbon atoms. और बेंजीनॉइड में क्या है? It contains at least 1 benzene ring. Non-benzenoid भी aromatic है, but it does not contain benzene ring. तो third type of closed chain compounds है, they are heterocyclic. So the third type, they are known as heterocyclic. Heterocyclic का मतलब क्या हुआ? Hetero means different. तो इसका मतलब जो साइकिल हम हेटेरोसाइक्लिक में लेंगे उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं. जनरली जो प्रेजेंट रहते हैं दे आर ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन. ठीक है. सो हेटेरोसाइक्लिक में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अब यहाँ पे आप देख लो कि नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन द साइकिल. ठीक है. दिस इज नोन एज पायरोल. ओके, इसी तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. दिस इज नोन एज फ्यूरान. ठीक है. अब नाइट्रोजन का एक और ले सकते हैं हम, बट ओवर हियर देयर आर 6 मेंबर्स इन द साइकिल. ओके, दिस इज नोन एज इसको क्या बुलाते हैं? पिरिडीन. This is known as pyridine. Pyridine में sorry there are 3 double bonds. One is here, one is here and one is here, and there is no hydrogen present. ठीक है? So ये जो है they are heterocyclic. So let's just take a recap in a tabular form कि हम किस तरह से classify करते हैं. So we said that we are classifying the organic compounds into open chain. ठीक है. ओपन चेन को हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज एसाइक्लिक और दे आर क्लासिफाइड इनटू क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है. क्लोज्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे इनटू होमोसाइक्लिक. Homocyclic means that all the atoms present in the ring they are carbon, right? और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया heterocyclic. ठीक है. होमोसाइक्लिक को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू एलिसाइक्लिक, which contains 3 or more than 3 carbon atoms in a ring, and aromatic. Aromatic are those which have a specific aroma. ठीक है. And aromatic को हम further classify कर रहे हैं into 2. One which is known as benzenoid and the other one that is known as non-benzenoid. Benzenoid and non-benzenoid. So this is the entire classification of the organic compounds. Okay. Now when we are going to do organic compounds, हम धीरे धीरे एक एक करके स्टेप चढ़ेंगे और बहुत सारे इसमें नए नए टर्म्स पढ़ेंगे. Now these new terms I am taking one by one. Nomenclature मैं पहले ही नहीं ले रही हूँ. I am going to explain nomenclature में जो जो भी आपको अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं वो सारे हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद nomenclature पे चलेंगे.
करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट word which we are, or you can say the first type of term which we are going to use in nomenclature, that is known as the functional group. So what are we saying कि हम सबसे पहले जो learn करेंगे that is functional group. अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो simplest kind of organic compounds होते हैं they are the hydrocarbons. Simplest organic compounds they are hydrocarbons. कल भी मैंने बताया था कि hydrocarbons they are simply compounds of carbon and hydrogen, right? So hydrocarbons they are, we can say that जितने भी हम compounds पढ़ते हैं वो सारे के सारे hydrocarbon से ही derive होते हैं. So hydrocarbons they are the mother organic compounds. Okay, so we say that hydrocarbons they are the mother of all organic compounds. इससे जब हम लोग substitute करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि we can get thousands and type of organic compounds only from these compounds, right? Which are known as hydrocarbons. Like for example, अगर हम एक simple सा hydrocarbon ले लेते हैं इथेन. इथेन is a hydrocarbon. अगर हम इसको रिएक्ट कर देते हैं, सपोज वी आर रिएक्टिंग इट विद aqueous KOH, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो एक हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड वी विल गेट अ न्यू प्रोडक्ट व्हिच इज इथाइल अल्कोहल. ओके, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन आई एम शोइंग यू कि हम लोग कैसे हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल्स बना सकते हैं. उसी तरह से हम हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर करके बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना देते हैं, राइट? अब यहाँ पे जो हम ये यूज कर रहे हैं या जिससे हमने सब्स्टिट्यूट किया OH ग्रुप, दिस इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप. सो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? यू कैन राइट डाउन दैट फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेशल ग्रुप attached to the carbon chain, which determines the properties of the organic compound, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए, वन इज इथेन, राइट? जब हमने इसको इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आ गया व्हिच इज इथाइल अल्कोहल. अब इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी. क्यों? क्योंकि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप्स अलग हैं, राइट? इसमें हाइड्रोकार्बन इज द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट और वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज द OH, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. So all alcohols they will have the same properties, same chemical properties. All अगर हम बोले alkanes they will have the same chemical properties, right? अगर हम सारे alkenes लेंगे उन सब की chemical properties same होगी. So basically functional group क्या यहाँ पे suggest कर रहा है या क्या हमें बता रहा है? It tells us about the chemical properties of a particular compound. Okay. Now when we are talking of the functional group, we have functional groups containing carbon-carbon multiple bonds. That is the first kind of functional groups which we are going to do. Groups containing carbon-carbon multiple bonds. Carbon-carbon multiple bonds. It means that मल्टीपल बॉन्ड्स, which means what? कि कार्बन और कार्बन के बीच में या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो इसमें हमारे पास तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं. द फर्स्ट वन which is alkenes. These are a group of functional group or in which there is carbon-carbon double bond present, right?
तो जिसके पास भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, they all will come under the category of alkenes as functional group and they all will have the same chemical properties. ठीक है. सेकेंड जो हमारे पास आता है that is alkynes. Alkynes जो है it consists of carbon carbon triple bond, right? So carbon carbon triple bond means कि जिसके पास भी carbon carbon triple bond है, they come under alkynes and they will have the same chemical properties. Then the third one, they are known as arenes. Arenes, they have one aromatic ring at least. जैसे हमने अभी बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड करे थे. So let's take the example of a heterocyclic, homocyclic hexane ring which has alternate single and double bonds which is known as benzene. So ये जो functional group है that is only due to the type of bonding between carbon and carbon. यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग है जहाँ पे हमने ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स ले लिए. ठीक है. फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है that is groups containing different elements like oxygen, sulfur, nitrogen. ठीक है. ये भी जो ग्रुप्स हैं they can also be attached to the or even halogens attached to the carbons in the ring or in the open chain. इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे. The first one they are known as alcohols. Okay? जो alcohols में हम functional group यूज करते हैं in which carbon that is attached to oxygen. ठीक है. OH, alcohol that is known as OH, right? सेकेंड जो हमारे पास फंक्शन, ये सारे आपको याद रखने. सेकेंड वन क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हमें जरूरत पड़ेगी. The second one they are known as alkyl halides. Alkyl halides में the carbon is attached to a halogen. Right? Basically हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे एक नया वर्ड हमने यूज करा alkyl. Alkyl group क्या होता है? It is the group which is attached to the functional group. तो अब यहाँ पे उस वाला जो ग्रुप जो attached है functional group उसके साथ कार्बन होना जरूरी है. That is the carbon chain basically. ठीक है. So the carbon chain which is attached to the functional group that is known as alkyl chain. Okay? We will see later कि वो alkyl chain बनती कैसे. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं aldehydes. Okay? Aldehydes जो ग्रुप है that is C double bond O and H. This is CHO. इसको अदरवाइज हम लोग जब चेन में रिप्रेजेंट करते हैं this is the CHO group, बट जो बॉन्ड प्रेजेंटेशन है उसकी वो हम ऐसे शो करेंगे. कार्बन इज अटैच्ड विद अ डबल बॉन्ड बट अल्कोहल्स में कार्बन इज अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड ओनली. ओके. सो एल्काइल ग्रुप को हम एज R भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस becomes ROH. R over here is going to represent the alkyl group, right? फिर उसके बाद ये वाला जो CHO हम यहाँ पे ले रहे हैं that is directly attached to the alkyl group. तो हमारे पास जो representation हो जाएगी that is going to be RCHO. This is an aldehyde, right? फिर जो fourth हमारे पास आता है that is a ketone. Ketone. Ketone क्या है? That is a group which contains C double bond O in the center और दोनों साइड alkyl groups are present, right? The keto group is C double bond O पर उसकी दोनों साइड alkyl groups present रहते हैं. ये जो alkyl groups present हैं या तो same भी हो सकते हैं या they can be different. So अगर हमको different show करना है तो हम R dash show कर देंगे. ठीक है? They can be similar or they can be different. फिर फिफ्थ हमारे पास आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स.
कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हुए? इन विच वी हैव एल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और दूसरा जो ग्रुप है दैट इज OH. आप एल्डिहाइड में देख रहे हो कि एक C डबल बॉन्ड O और दूसरा CH है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और दूसरा OH. सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज RCOOH. दिस इज द ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स के हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं ये सारे के सारे, उसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं. So let's understand the next one, which is derivatives of कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये जो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव कर सकते हैं सिर्फ, राइट? तो इसमें जो फर्स्ट आ जाएगा दैट इज अमाइड्स. अमाइड्स, इस पे आप देखो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड O NH2. सो हमने क्या किया यहाँ पे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप था उसको हमने अमीन के साथ, NH2 इज अमीन, राइट? अमीन के साथ हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो क्या बन गया? अमाइड. फिर सेकेंड जो इसमें होते हैं दे आर नोन एज कार्बोनाइल क्लोराइड. कार्बोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है दैट इज RC डबल बॉन्ड O Cl. So what have we done over here? OH has been substituted by chlorine. Yes, right? So this is a carbonyl chloride. Then the third one which we have, they are esters. ठीक है, अब esters का स्ट्रक्चर देखो कैसे चेंज हो रहा है. Okay, so hydrogen has been substituted by alkyl group. Again, this alkyl group may be same or this alkyl group may be different, right? So these are known as esters. और ये तीनों के तीनों क्या है? They are derivatives of कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, समझ में आ गया? ओके. फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं the next sixth, ethers. Ethers are ROR. This is the group. ठीक है, अब यहाँ पे भी ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है. The alkyl groups may be same, the alkyl groups may be different. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे आते हैं जिन्हें हम जनरली बोलते हैं कि they are not the main functional groups, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7th आ गए. अच्छा, हमने अल्काइल हैलाइड्स तो ऑलरेडी कर लिया. Let's take another one which is amines. Amine has the functional group NH2. Then we have nitriles. Nitriles have the functional group C triple bond N. ठीक है, these are nitriles. ये जो मैं यहाँ पे ये शो कर रही हूँ, this is the bond which is attached to the carbon chain. ठीक है, so we have amines which is NH2, then we have nitriles which is CN. Then in addition to this हमारे पास वैसे तो नाइट्रो कंपाउंड्स भी आते हैं. नाइट्रो कंपाउंड्स they are those having NO2. ठीक है, and then we have also thiols. Thiols they are the compounds having SH group and SH that is attached to the carbon chain. Clear? So ये हमारे पास functional groups हैं. Is it clear? So what did we do? We have done alcohols, alkyl halides, alcohols में OH, alkyl halides में halogen, X over here represents halogen.
हेलोजन हमारे पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फिर एल्डिहाइड्स which is the CHO group, कीटोन which is the RCOR, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH. Then we have the derivatives of carboxylic acids, amides RCONH2, carbonyl chloride RCOCl, esters RCOOR. Then ethers ROR. ethers और esters को आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ओके, बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है. फिर उसके बाद आ गया अमीन्स, अमीन्स के बाद आ गया नाइट्रल्स, नाइट्रो एंड थायोल्स. ओके, नाउ आफ्टर डूइंग द फंक्शनल ग्रुप्स वी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स व्हिच इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. राइट, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव द होमोलोगस सीरीज. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय होमोलोगस सीरीज? Homologous series, they are a series of compounds having same functional group. Having same functional group, ठीक है. functional group इसमें same है और जो consecutive members इसके होते हैं they differ from each other by a CH2 group, ठीक है. so consecutive members differ by CH2 group. This is what homologous series is. जैसे for example अगर हम homologous series लें alcohols की, so the homologous series of alcohols that is made as CH3OH, right? This is the first member. फिर उसके बाद CH3 CH2OH, ठीक है. उसके बाद CH3 CH2 CH2OH, ठीक है. and this is how the chain keeps growing. okay, so यहाँ पे आप देखो CH3 है, the consecutive member that will differ by a CH2 group. इसमें और इसमें difference अगर हम देखेंगे तो there is a difference of CH2 group. इसमें CH2 group एक ज्यादा है, ठीक है. उसी तरह से जब हम second और third को compare करते हैं, again there is going to be a difference of CH2 group. so this is one of the major characteristic of homologous series. बाकी characteristics homologous series के क्या हैं आप लिख लो. characteristics of homologous series, number 1, all the members can be represented by same general formula, ठीक है. all the members they are represented by same general formula. मतलब अगर हमको alcohols को represent करना है तो हम alcohols को represent कर सकते हैं as CnH2n+1OH, where n is the number of carbon atoms. okay, so उसको यहाँ पे लगा के देखते हैं इस फॉर्मूला को हम. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज इक्वल टू 1, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH 2 into 1 plus 1 3OH, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर. अब हमको सेकंड मेंबर के लिए C is equal to 2 आ गया, तो सेकंड मेंबर 2H क्या आ जाएगा, 2 into 2 4 plus 1 5OH. सो ये सेकंड मेंबर देखो आप, 3 plus 2 5 आ गया, C2H5OH, राइट. उसी तरह से अगर आपको C3 लेना है तो ये आ जाएगा C3H7OH. so all the members of the series they can be represented by the same general formula, ठीक है. नंबर 2 लिखो,
two successive members differ by a CH2 group that we have already seen over here कि दो जो members हैं वो differ कर रहे हैं by a CH2 group. ठीक है. Third, members they have identical chemical properties. All the members of the homologous series will have same chemical properties. ठीक है. और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इन मेंबर्स की, physical properties they show a general gradation. General gradation का मतलब जैसे कि आपने periodic properties थर्ड में करा था ना कि जब आप along a period जा रहे हो तो इस तरह से melting points change हो रहे हैं या ionization energy change हो रही है, जब आप down the group जा रहे हो तो ionization energy इस तरह से change हो रही है, उसको हम लोग general gradation बुलाते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं. तो अगर हम यहाँ पे CH3OH, C2H5OH और C37OH का करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली ना. वी से विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज. सो दिस इज जनरल ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज के सारे एलिमेंट्स सारे कंपाउंड्स की सेम रहती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जनरल ग्रेडेशन शो करती है. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज दे ऑल कैन बी prepared by same general methods of preparation. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको अल्कोहल्स को प्रिपेयर करना है तो हम अल्कोहल्स को हेलोजन से हेलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं. RX लिया, उसको हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें ROH प्लस KBr दे देगा. सो ये वाला जो एक क्या कहते हैं आप कह सकते हो कि ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये सारे अल्कोहल्स के लिए ट्रू है. यहाँ पे सिर्फ हमको अगर मिथाइल बनाना है तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लेना पड़ेगा, एल्काइल ग्रुप. अगर हमें इथाइल बनाना है तो यहाँ पे इथाइल लेना पड़ेगा एंड सो ऑन. ओके. सो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आर सेम. Right? Have you understood? So this is the functional group and the homologous series. Then next we come to nomenclature. What is nomenclature? Nomenclature is the naming of organic compounds. In fact, naming of any compounds. जब आप 12th पे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री करोगे तो उसको जब हम नेम करते हैं तब भी हम nomenclature बुला रहे हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कर रहे हैं, then also that is known as nomenclature. जब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिगिन हुई थी तो इनिशियली देयर वर वेरी फ्यू कंपाउंड्स व्हिच वर नोन टू अस, राइट? So as a result of which we had one system which was known as the trivial system of nomenclature, right? The trivial system that is also known as the common, that is known as the common system of nomenclature. Initially जब naming शुरू करी तो that name was according to the source. There were different distinct criteria given for naming कि source कहाँ से हमें organic compound मिल रहा है उसके basis पे, या फिर we can say that on the basis of taste. ठीक है. इन सब के basis पे common names दे दिए गए. जैसे for example urea. Urea is the name given to the compound NH2CONH2 because
that the source of urea, that was the urine of mammals. ठीक है, so from the word urine the word urea came, right? In a similar manner, जब हम लोग मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल that is known as wood spirit. Why it was known as wood spirit? Because जब हम लोग wood को burn करते हैं तो उसमें से एक liquid निकलता है. That liquid was supposedly known as मिथाइल अल्कोहल या CH3OH या wood spirit. तो नाम जो था वो wood spirit इसको दे दिया, right? उसी तरह से there was another one which is formic acid. Formic acid जो था that was from the red ant, from the sting of the obtained from the sting of red ant. And this red ant that was known as formica. तो इसलिए इसको जो नाम दे दिया गया, that was formic acid with the formula of HCOOH. ठीक है, उसी तरह से there was another one which was CH4 जिसको मार्श गैस बुलाते हैं, राइट? मार्श गैस हम इसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मार्शी एरियाज में बहुत सारे पत्ते जो हैं वो सड़ जाते हैं और ट्रीज जो हैं ऊपर उनको बास्क करके रखते हैं, सनलाइट वहां तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाती, तो डैम्पनेस की वजह से जब वो सड़ने लगते हैं उसमें से एक गैस निकलती है which is methane. Because it is obtained from marshy areas, therefore इसको marsh gas बुलाते हैं. But similarly इसका और भी नाम है, it is also known as biogas. Okay, so now source जो था उसको हम तब तक trivial system को कर सकते थे जब तक the compounds they were few. Because number one, जैसे जैसे compounds बढ़ते रहे वैसे वैसे the need to have a proper regular arrangement of naming the compounds that was felt, and number two कि बड़ी सारी confusion हो गई. अब जैसे आप देख रहे हो कि CH4 को marsh gas भी बुला रहे हैं, उसको biogas भी बुला रहे हैं. So these are two different names for the same compound, right? जैसे for example आप यहाँ पे भी हिमाचल में भी say that after every 10 kilometers the name of the dish changes. ठीक है, हम लोग वो जो कर्ड से यहाँ पे बनाते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? रेडू, खेरू. तुम खेरू बुलाते हो, ठीक है, और रेडू बुलाते हैं क्या कहते हैं उसको? रोडू में रेडू बुलाते हैं उसी चीज को मंडी में झोल बुलाते हैं. ठीक है, बनता सेम है, वो लस्सी में तड़का डाल के जो बनाते हैं हम. ठीक है, द डिश इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस, बट सिर्फ क्या है कि हर एक लोकेलिटी के साथ या हर एक आप कह सकते हो सोसाइटी के साथ उसका नाम चेंज हो जाता है. ओके, तो जो बाहर से टूरिस्ट आएगा उसको आप वो तीनों चीजें सर्व कर दो विद डिफरेंट नेम्स, वो बाद में वो रोएगा कि एक ही चीज खिला दी मुझे, isn't it? But otherwise नाम तो सबके अलग अलग ही हैं. So same confusion जो थी वो यहाँ पे भी आ गई कि नेम्स को किस तरह से रखा जाए. फिर उसके बाद एक आप बोल सकते हो एक सोसाइटी बनाई गई जनीवा में इन द ईयर 1947, राइट? हमारा जो इंडिपेंडेंस ईयर है 1947 में जनीवा में साइंटिस्ट ने मिलके एक सोसाइटी बना दी जिसको उन्होंने बुलाया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने सबसे पहले रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर दिए इन द ईयर 1979. ठीक है, सो जो फर्स्ट रूल बुक है दैट वाज गिवन इन 1979, बट देन इट वाज अगेन अपडेटेड इन द ईयर 1993, राइट? सो हमने जो पढ़ना है नॉमेनक्लेचर दैट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द 1993 जर्नल, ठीक है, जो दिया गया था नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय J. Rigandy. दैट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने J. Rigandy ने इसको इनिशियली दिया था, और फिर 1993 में जिसने इसको अपडेट किया था, हिज नेम वाज W.H. Powell.
ओके, सो हमने WH पावर के लेटेस्ट अपडेटेड रूल्स पढ़ने हैं, which we will do tomorrow. ठीक है, we will do the entire nomenclature tomorrow only ना.